Hello everyone and welcome to the Backbenchers Academy by Rohit Verma. This is me Rohit Verma and here I am back with another video. This video is primarily for class 9th, ICSE class 9th, wherein my prime agenda to actually make this video is first of all to emphasize on the fact that what particular topics that you need to cover for ICSE for class 9 specifically, because ninth is a major change for ICSE, considering the fact that when you come, like being a student, when you come from class 8th to class 9th, there are ample of dynamic changes in your curriculum, considering that in class 8th you've been studying integrated science. Now it's time that you study separate physics, chemistry and bio. So basically now you have three different books meant for the three different subjects. So you have the same amount of time. You need to put, of course, a huge amount of efforts, much more amount of efforts, and the amount of content you need to study is definitely going to multiply many a time, since even SST, that is social studies, will also be segregated. So my prime motive for making this video is to make things easier for you. And there are lots of videos on YouTube that you can get regarding this topic, regarding the topics that I'm going to cover, but my particular attention will be on ICSE format of the examinations, and specifically I'm going to tell you and introduce you to things that you need to take care of, that you need to do, and things that you don't need to do in order to score good for your class 9th exams. So I just request you to follow my instructions carefully, to listen to them, need to understand them well. So in order to begin with, first of all, welcome you all to class 9th from class 8th. A major change. It's not going to be tough. It's not going to be at all going to be like scary, but definitely it'll be a slightly more challenging task than what you've been doing earlier. As per even the recent format that has changed up, now the question papers do start come. They do come from the council, so you don't really know what can come. You have no idea who's making the paper, which hardly matters because you need to focus on the concepts that we're going to discuss up here in the class. And the first topic for our today's discussion will be, everyone, the second chapter of your particular book, I suppose, which you must be following, that is motion in one dimension. So today, whatever chapter number may it be, we're going to discuss about this topic of motion in one dimension. And in this certain set of module of today's video, we are going to discuss some specific topics regarding the chapter motion in one dimension. So without any delay, let's particularly start with our topics. And before we start any further, I request you to please watch this video till the end, understand the details of the concepts. I'm pretty sure, and I can actually guarantee you, you're gonna have fun. I will make sure that I'll make the subject for you a little lot more entertaining, a lot more encouraging, so that you actually understand it well, because it's a conceptual subject, but yet it is science. It's full of logics. We're gonna discuss them up. It's gonna be super easy. Let's get this started. So everyone, let's talk about our very first topic of discussion, which is state of rest, motion, and their interrelation for an object. Like, how can we say an object is at rest, is in motion, and what is the relation between the two of them? That means, how can an object be at rest and in motion at the same point of time? So let's get it discussed one by one. First of all, talking about state of rest. See, when I say, how can we say that an object is at rest? You will say that if it's not moving, it's at rest. That's a simple term statement. We need to talk about its definition, because we're talking about a logical subject, and when we talk about logics, there are certain key terms that you need to definitely emphasize, and you need to be particular about them, since you can't really miss out the key terms. They have their marks. If you miss out the key terms from a particular statement, you actually convert that definition into a basic statement, and therein your marks are deducted for the same in sciences, specifically in physics. So let's get it actually discussed in logical terms. See, when you say being in rest, it means the object is not changing its position. That's the key term. The object which you're talking about, let's say if I say, how can we say that an object is at rest? An object can be at rest if it is not changing its position. But let's understand this a little more in detail. If we say there's an object, let's say like this, and I keep it on my palm, and it is still, it's at rest? Yes, it is. Until and unless I intentionally move it, because it's a non-living thing, or I change my position. But if I actually change the object, let's say if I talk about not this particular chalk holder, I talk about an organism, let's say a snail.
a snail, which is a particular creature that moves really slow. So if you're looking at a snail, suppose, and you feel it's not moving, is it actually so? It may not be true, because it may be possible that the snail is crawling really, really slow. It's moving really slow. That after some time you may see that the snail has changed its position from one place to another. So what actually matters is, according to the surroundings, our surroundings, if we are changing our position, then yes, we are in motion, which means we can be at rest if we are not changing our position with respect to our surroundings and with respect to time, which means that there are two depending factors. So if you talk about the depending factors for being at rest or in motion, the two depending factors are, number one is time, number two is surroundings. So basically, these two factors actually decide whether an object is at rest or in motion. Let's suppose you are seated in a car and you're traveling. The car is moving, but you're seated in a car. If there's a person seated next to you, he will say you are at rest. But a person who's outside the car actually will see you in motion, because the car is moving and you are moving along with the car as well. So the person outside the car on the road will say you're in motion. So which means, now this is a click. See, this is basically the interrelation. How can an object be at rest and in motion at the same time? Yes, it's possible. How? If you are seated in a vehicle which is moving, it can be a bus, car, truck, train, whatever. If you see and you ask from a person who's seated next to you, he will say you are in rest, because according to the person seated next to you, like your co-passenger, you are in rest. But if you ask from a person who's standing outside that vehicle and the vehicle is moving, the person outside will say you're in motion. So a person inside a moving car or a bus or a train or a truck whatsoever is in motion and at rest at the same time. So that's how it's possible. ऐसे ये possible है. Let me involve a bit of the our own language as well. तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन दोनों में है एक साथ में? अगर आप किसी मूविंग व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ जो पैसेंजर है उसके हिसाब से आप रेस्ट पे हो, और आपके व्हीकल के बाहर जो इंसान है उसके हिसाब से आप मोशन में हो. तो आप रेस्ट और मोशन दोनों में हो. यानी रेस्ट और मोशन इन दो चीजों पे प्राइमरली डिपेंड करता है. तो अगर हम इसे डिफाइन करें, इफ वी डिफाइन what is the state of rest, we can say an object can be defined as being in a state of rest if it does not change its position with respect to the time and with respect to its surroundings. Then it is said to be in state of rest. For example, a bottle kept on top of a table, it will remain in rest until and unless we change its position. Second, talking about motion, how do we define motion? That we can say that an object is said to be in state of motion if it changes its position. Remember this term, if it changes its position with respect to WRT, means with respect to these two parameters. So an object is said to be in motion if it changes its position with respect to time and its surroundings. This was the first topic. Considering, you need to know how can we say that an object is at rest and in motion, and what is the relation between the two. And coming up to the point, like how can the question be framed out of this? The question can ask you, define the interrelation between the state of rest and motion. So you need to tell about the same, that if a person is seated in a moving vehicle and at that point of time the object or the person rather is in state of rest and motion, both depending on the perspective. For a co-passenger, the person is at rest. For a person outside the vehicle, and when the vehicle is moving, the person is in motion. This is one basic question which generally is asked from this topic. And now let's move on to our next topic. Okay, so everyone, now let's understand the types of motion. अब हमने motion पढ़ा. Motion क्या होता है कि if we are changing our position with respect to time and with respect to our surroundings, तो उसे कहते हैं कि मोशन में है. अगर हम टाइम और सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हाँ हम मोशन में है. अब मोशन में भी
हम जनरल टर्म्स में वी कैन बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ मोशन, यानी हम दो तरह के मोशन एग्जिबिट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. पहला यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट. कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट. अब इसको ऐसे समझ लो कि हम स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं. यूनिफॉर्म का मतलब ही है कि जितने भी बच्चे हैं वो एक जैसे दिखेंगे, irrespective of their gender, their caste, community, creed, color, their economic status, कुछ भी हो, फाइन. हर उन चीजों को साइड करके आप सब एक जैसे नजर आते हो जब आप यूनिफॉर्म में होते हो. डिफेंस में यूनिफॉर्म होती है ताकि इक्वालिटी हो. देयर इज लाइक एक पर्टिकुलर, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इतने डाइवर्स नेशन का पार्ट है, हम सब एक जैसे दिखाई दे. तो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म का मतलब ही ये है कि एक जैसा होना, कांस्टेंट होना. कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता, जो सेम रहता है, कांस्टेंट, राइट. तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट मोशन. इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. सपोज करो इफ यू आर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे हो ऑन लेट्स से अ बाइक. आपने बाइक की स्पीड को कॉन्स्टेंटली 40 किलोमीटर पर आवर पे रखा हुआ है, जिसका मतलब होगा आप पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, नेक्स्ट दूसरे घंटे में फिर 40 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, तीसरे घंटे में फिर 40 किलोमीटर ट्रैवल करोगे. तो हो क्या रहा है, आप कॉन्टिन्यूस इंटरवल ऑफ टाइम में कॉन्टिन्यूस डिस्टेंस को या कांस्टेंट डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हो. उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. सिंपल टर्म्स में समझे तो स्पीड का कांस्टेंट हो जाना. यूनिफॉर्म मोशन का एक्चुअली मतलब होगा when an object covers same amount of distance in same intervals of time. same intervals of time में जब हम same amount of distance cover कर रहे हो तो that means कि हम uniform motion में हैं. For example, अर्थ की मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है. अर्थ कॉन्स्टेंटली एक सर्टेन स्पीड से मूव करती है जिसकी वजह से 24 आवर्स का एक दिन बनता है. एंड वी गॉट 346 is to 1/4 of an entire revolution, जिसमें कि एक ईयर कंप्लीट होता है. सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन. कांस्टेंट मोशन, स्पीड सेम है, चेंज ही नहीं हो रही. आप एक एक कदम रख रहे हो एक एक सेकंड में, तो आप एक कॉन्टिन्यूस स्पीड पे चल रहे हो, एक कॉन्टिन्यूस स्पेस पर चल रहे हो. अब इसी का बिल्कुल ऑपोजिट, नॉन यूनिफॉर्म. नॉन मींस एंटी, अगेंस्ट. आप यूनिफॉर्म नहीं हो अपनी मोशन के टर्म्स में, यानी अगर आप अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हो तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बाइक पर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पर हम किसी सिटी में हैं जहां पर ट्रैफिक है, तो कांस्टेंट स्पीड रखना पॉसिबल ही नहीं है. आप 40 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड को रख ही नहीं पाओगे सेम. आप हो सकता है आपको ब्रेक लगाने पड़े, ड्रॉप करनी पड़े स्पीड, जहां आपको स्पेस मिलेगा आप हो सकता है इंक्रीज भी कर जाओ स्पीड को, 60 तक भी ले जाओ, डिपेंड्स. तो इस कंडीशन में आप एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट कर रहे हो जिसमें आपकी जो स्पीड है वो इस तरह चेंज हो रही है दैट सी यू आर अंडर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ you are having a different set of distance being covered in same intervals of time. मतलब मान लो अगर आप हर 1 घंटे की बात करो तो पहले 1 घंटे सपोज करो आपकी कुछ स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी लगभग मान लो 42 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट 1 आवर में स्पीड रही 60 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट 1 आवर में स्पीड रही 32 किलोमीटर पर आवर क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा था. तो आपकी स्पीड सेम नहीं रह पा रही है, इसलिए क्योंकि आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो. सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर करना, ये है बेसिक दो टाइप्स के मोशन जो जनरली ऑब्जेक्ट्स कवर करते हैं. दिस इज आवर सेकंड टॉपिक. अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर. Next topic for the day, the next topic we have to discuss is types of quantities. quantities के types. अब हम डिस्कस करते हैं quantities. quantities का मतलब क्या है, physical quantities जो हम साइंस में जिन पे डील करते हैं. जैसे आप बात करते हो स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला की, स्पीड एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक अलग क्वांटिटी है, टाइम एक अलग क्वांटिटी है. ये सब क्वांटिटीज है, मेजरेबल क्वांटिटीज जिन्हें मेजर कर सकते हैं. तो ये क्वांटिटीज जनरली दो टाइप्स की होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, विच इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर और वेक्टर, लेट्स अंडरस्टैंड देम इन अ लिटिल डिटेल. अब देखो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके पास these are those quantities जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है, they have magnitude but no direction. डायरेक्शन पे क्रॉस हम लगा देते हैं.
तो स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है, व्हिच मींस दैट अगर हम इसे डिफाइन करें तो वी कैन से द स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट टाइम, अब जब आप टाइम बताते हो, आपसे पूछा जाए अभी टाइम क्या हो रहा है, लेट्स सपोज अभी पूछा जाए, तो अगर आप सपोज करो 3 बजे हुए तो यू मे से दैट इट इज 3 o'clock। यू डोंट से इट्स 3 o'clock टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ। डायरेक्शन नहीं होती है इसकी। टाइम इज अ डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो बेसिकली टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। एग्जांपल, मैं सिर्फ एक बेसिक से एग्जांपल बता रहा हूं टाइम, ठीक है। हम और एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी के जस्ट बाद, लेकिन सबसे पहले इन्हें समझते ही है क्या। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है। अब मैग्नीट्यूड अगर हम समझे क्या चीज होती है, वैल्यू। मैंने आपसे पूछा टाइम क्या हुआ है, 3 बजे हैं, 3 o'clock। 3 जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड है। सपोज मैं अपने वेट की बात करूं, माय वेट इज लेट्स से 70 kg, 70 मैग्नीट्यूड है। केजी इसकी यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट ये दो चीजें हैं जिसमें कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो है, राइट, बट डायरेक्शन नहीं होगी, यानी ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। सो दे हैव मैग्नीट्यूड एंड दे आल्सो हैव डायरेक्शन। फाइन। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। सिंपल सा अगर एक एग्जांपल डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं फोर्स। भाई जब आप फोर्स लगाते हो, लेट्स सपोज अगर आप किसी कार पे फोर्स लगा रहे हो, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, रिमेंबर आई सेड द वर्ड डायरेक्शन, में फोर्स लगाओगे, उस फोर्स का इंपैक्ट उसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में लगेगा। यानी फोर्स के केस में डायरेक्शन एक्चुअली मैटर करती है। अब अगर आप एक कार पर दो लोग फोर्स लगा रहे हो बराबर बराबर आमने सामने से, ये कार मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। दोनों एक ही तरफ से फोर्स लगाओगे, फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा फोर्स से गाड़ी मूव करेगी। आपके फोर्स का एक डायरेक्शन है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं बोर्ड पे, आई कैन पुल इट अप, पुट इट डाउन, मैं इस पे फोर्स लगा के इसे मूव कर सकता हूं। तो फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन है, इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एवरीवन। सो आई होप आप इसका बेसिक समझ गए हो। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड but they do not have direction. For example, time, basic example, or examples अभी discuss करते हैं। Vector quantities are those quantities which have both magnitude as well as direction. For example, force. So force has magnitude means value as well as direction. So this was the basics you need to know about the types of quantities. And now everyone, let us discuss about some examples. So everyone, now let's discuss some of the examples of scalar and vector quantities one by one. तो यहाँ पर लिखे हुए मैंने कुछ examples, उनको एक एक करके discuss करते हैं। Scalar quantities, let's review it back. Those quantities which have magnitude means value but no direction. They don't really actually are measured with respect to directions. So let's understand the examples one by one. Length. When I say I'm going to measure the length of this particular board, I won't really measure it with respect to direction. I won't say कि मैंने north की तरफ measure किया है, south की तरफ measure किया। It will simply be a particular measurement with its units. हो सकता है ये कुछ inches में measure कर लूँ, meters में measure कर लूँ, doesn't matter. Unit कुछ भी हो, बस इसके पास value और unit होगी, कोई direction नहीं होगी। Surface area, इसका surface area जो मीटर स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है और किसी यूनिट में हो सकता है, लेकिन किसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। Then comes mass. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, मास का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जिस चीज से बना हुआ है, अगर मैं इस पर्टिकुलर चॉक होल्डर की बात करूं, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसमें प्लास्टिक के कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितना मैटर इसमें भरा हुआ है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड इट्स मास। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। देन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन कुछ क्वांटिटीज हैं जिनमें हम कंपैरिजंस पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक में। जैसे डिस्टेंस यहां पर है और ये है डिस्प्लेसमेंट यहां पर, ये। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें से डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन इन दोनों में इंटर रिलेशन या इनका कंपैरिजन हमें पढ़ना जरूरी है, जिसके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी यूनिट सेम होती है। बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ दैट दे हैव अ वेरी मेजर डिफरेंस कि एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है। तो डिस्टेंस कभी भी किसी डायरेक्शन में मेजर नहीं होती है। अगर डायरेक्शन इंप्लीमेंट हो गई तो वो डिस्टेंस नहीं रहेगी, वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। देन
सिमिलरली वी गॉट टाइम, टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी डायरेक्शन में नहीं होता है। टेम्परेचर, आप इधर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करो, केल्विन में मेजर करो, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करो, उसके साथ कभी भी हम कोई भी डायरेक्शन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। देन वी गॉट स्पीड, इसी तरह से जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन है, हमारे पास है स्पीड और साथ में है वेलोसिटी। इन दोनों का भी कंपैरिजन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी दोनों स्पीड और वेलोसिटी सेम यूनिट्स में काउंट होती हैं, चाहे वो मीटर पर सेकंड हो, चाहे किलोमीटर पर आवर हो, चाहे कोई और यूनिट हो, लेकिन इनमें से स्पीड स्केलर होती है और वेक्टर होती है वेलोसिटी। यानी जहां हम कह लें कि वी आर ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, बस इतना स्टेटमेंट, वो है स्पीड। अगर हम कहते हैं वी आर ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, अब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जहां डायरेक्शन इंप्लीमेंट हो गई वहां समझो वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी और स्पीड का एक टॉपिक और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक टॉपिक हम इसके नेक्स्ट सेशन में अभी इसी वीडियो में कवर अप करेंगे आगे, जिसमें कि एक अगर ये थी हमारी स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स, एक्सेट्रा मींस और भी ऐसे एग्जांपल्स पॉसिबल हैं, सो यू मे रेफर अप टू योर बुक वंस फॉर फर्दर एग्जांपल्स। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो सबको पता होने चाहिए। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल को अगर आप देखें तो फोर्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फोर्स जो हम इंप्लीमेंट करते हैं जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर मैं सपोज करो इस पर्टिकुलर चॉक होल्डर पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसे फोर्स लगा के ऊपर उठा भी सकता हूँ, नीचे गिरा भी सकता हूँ। आई कैन थ्रो ऑल्सो, आई कैन पुल ऑल्सो, पुल पुश दोनों पॉसिबल है। वेट, अब बॉडी का वेट जो किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से, जो कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, क्या वो एक तरह का फोर्स है? ऑफ कोर्स है। तो जब फोर्स अपने आप में वेक्टर है तो वेट तो ऑटोमेटिकली वेक्टर होगा, सिंस वेट एक तरह का फोर्स ही है जो अर्थ हम पे लगा रही है। क्योंकि अगर हम स्पेस में चले जाएं तो हम वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं, वेट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल, बिकॉज हमारा वेट अर्थ की वजह से ही है। देन कम्स मोमेंटम, मोमेंटम होता है बेसिकली P इक्वल्स mv, मोमेंटम का सिंबल होता है P इक्वल्स mv। तो मोमेंटम बेसिकली क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम को डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे इन वन ऑफ आवर सेशंस। Then comes acceleration. Velocity, I've told you, velocity is just speed with direction, is velocity. In simple terms, you can say. Then इसकी proper definition हम आगे discuss करेंगे. Then acceleration. अब acceleration word हमारी practical life से जुड़ा हुआ है। जब आप कहते हो हम किसी कार में बैठे हैं, एक्सेलरेटिंग पेडल होता है हमारा, एक पेडल होता है जिसको प्रेस करने पर गाड़ी एक्सेलरेट होती है। एक्सेलरेशन है जो हम क्रिएट करते हैं, एक्सेलरेशन की एक डायरेक्शन होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन आप जिस डायरेक्शन में क्रिएट करोगे, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं विद आवर पर्टिकुलर स्टीयरिंग व्हील के हेल्प से, तो उसी डायरेक्शन में हम मूवमेंट क्रिएट करेंगे। तो एक्सेलरेशन को भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यू मस्ट नो दीज एग्जांपल्स, क्योंकि एट टाइम्स ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज विद वन एग्जांपल ईच। तो एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल्स आपको दोनों के पता होने चाहिए। This was our topic. Let's proceed on to our next topic, everyone. Alright, everyone. So now let's discuss the topic of comparison between distance and displacement. आप समझते हैं distance और displacement में क्या difference है और exactly किस perspective से ये similar भी है। इनमें कुछ similarity है और एक बहुत बड़ा difference है। Let's understand. पहले definition से शुरू करते हैं। तो definition की जब हम बात करते हैं तो distance को कैसे define कर सकते हैं? The distance is the total path covered by an object. Distance is the total path covered by an object. ठीक है, यानी कि हमने टोटल जितना रास्ता कवर किया एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, उसे कहते हैं डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है दैट डिस्प्लेसमेंट is the shortest path. ध्यान से देखना everyone, shortest, ये की पॉइंट है तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया। shortest path covered, path is also a part of the keyword, covered by an object। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ने सबसे शॉर्टेस्ट, यानी एक यहां से इसने शुरू किया, ऑब्जेक्ट ने यहां खत्म किया, चाहे रास्ता कहीं से भी जाए, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ निकल के आएगा वो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर्स। ये होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी वो यूनिट जो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल यूनिट होगी, यानी जिससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा।
इसके अलावा ये सेंटीमीटर्स में भी काउंट हो सकता है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट सेम है, विच इज मीटर्स। ये भी मीटर में ही मेजर होता है, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, पर मेन यूनिट इसकी मीटर्स ही है। अब बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फाइन, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इन दोनों को और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसे थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और देखते हैं इनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है। अज्यूम करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर एक डायरेक्शन प्लॉट कर लेते हैं। ये है नॉर्थ, लेट्स अज्यूम ये हमारा साउथ, ऑन आवर राइट विल लाई ईस्ट और ये होगा वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मैंने ज्योग्राफिकल प्लेन बना लिया है जिसमें 4 डायरेक्शंस प्लॉट हो गई है। अब ये मान लेते हैं किसी का घर है, किसी स्टूडेंट का घर है, लेट्स अज्यूम दिस इज द होम ऑफ अ पर्सन। इसे मैं ए पॉइंट का नाम दे रहा हूं और ये है किसी पर्सन, उसी स्टूडेंट का स्कूल, लेट्स से, ठीक है। तो ये हमारा है स्कूल। अब घर से स्कूल तक जाने के लिए, यानी ये पॉइंट मान लेते हैं हम है सी, ए से सी तक जाने के लिए जो रास्ता इसके घर से जाता है, मान लो वो इस तरह जाता है कि सबसे पहले इसे सीधा जाना होगा और कवर करनी होगी डिस्टेंस जो होगी, सपोज करते हैं 4 मीटर्स, ठीक है। अब 4 मीटर कवर करने के बाद इसे राइट मुड़ना होगा, शार्प राइट ऐसे, और फिर इसे सीधा कवर करना होगा 3 मीटर का डिस्टेंस, लेट्स अज्यूम, जिसमें कि ये राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे घर से स्कूल तक जाने में हम सीधा गए 4 मीटर, फिर राइट बेंड हुए, फिर गए 3 मीटर, स्कूल आ गया, जिसमें कि जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर की वो कितनी थी, वो थी 4 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी कि 7 मीटर्स। लेकिन ये तो हो गई डिस्टेंस, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये घर है, ये स्कूल है, इनके बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस होगी ये। हालांकि ऐसी कोई गली नहीं होगी या ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा, बट स्टिल हम टेक्निकल टर्म्स पे या लॉजिकल टर्म्स में बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जो एक्चुअली क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ये रहा, जिसको कि ढूंढने के लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो 4 का स्क्वायर करते हैं 16 प्लस अंडर रूट में रखा 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 मेक्स इट 25, जिसका आंसर आएगा 5 प्लस माइनस 5 मीटर्स, जिसमें कि पॉजिटिव होगा क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये हो गया 5 मीटर्स, जिसका मतलब हुआ यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी आई, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आ रही है वो है 5 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, और डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, यानी जहां से हमने जर्नी शुरुआत की टिल जहां तक हम गए वहां तक टोटल हमने कितना पाथ कवर किया, वो है हमारा डिस्टेंस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इनमें डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है। और एक चीज और जो हमें यहाँ एम्फेसाइज करनी होगी, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो यहाँ एक चीज लिखनी जरूरी है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो 5 मीटर की हमने शो की है ये किस डायरेक्शन में है। तो ये हमारे ओरिजिन के हिसाब से हम गए नॉर्थ और ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट में होगी, 5 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। और ये लिखना जरूरी है क्योंकि हमारी डायरेक्शन एम्फेसाइज करनी जरूरी है, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो, हमें डायरेक्शन बतानी होगी क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एट टाइम्स स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का आंसर लिखते टाइम डायरेक्शन नहीं लिखते, जिसके मार्क्स कट जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, सो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या चीजें हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। एक स्केलर है यानी डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एक क्वेश्चन एट टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है आईसीएसई में, इनफैक्ट 9th के फाइनल एग्जाम्स में या सीटीज में या इन बिटवीन मिड एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है इस चैप्टर का, जो कि है कि कैन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बी जीरो। भाई कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके बावजूद क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, यानी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो आ रही है। तो अगर ऐसा है
तो कैसे? आंसर है ऑफ कोर्स हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। आप समझते हैं कैसे? डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले तो समझो है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जहां से हमने जर्नी शुरू करी, जहां खत्म करी। अगर इन दोनों पॉइंट्स को एक ही बना दे, यानी जहां से हमने शुरुआत की जर्नी की, वहीं आके खत्म कर दे, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी, क्योंकि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप तो जीरो हो गया, गैप रहा ही नहीं। जैसे अगर सपोज करो हम बात करें अर्थ की, अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रही है, एक पॉइंट से इसने सपोज करो शुरुआत किया मूव करना, वापस से घूम के किसी एक पॉइंट पे ऐसा जरूर होगा कि वो अर्थ जो है वापस उसी पॉइंट पे आके मीट कर जाएगी, विच मीन्स एक लूप बन जाएगा। तो यहां पर डिस्टेंस तो अर्थ ने कवर की है, टोटल पाथ तो कवर किया है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है जीरो। सो इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो यू कैन सिंपली से यस इट्स पॉसिबल if the object comes back to its initial position, अपनी इनिशियल पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट वापस आ जाए तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। आई मीन बहुत सिंपल सी चीज है, अगर इसे डायग्राम के हेल्प से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा समझो, जैसे मान लो ये है पॉइंट ए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसने सपोज करो ये आगे गया पॉइंट बी पर, 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर आगे गया पॉइंट सी पर, ठीक है, यहां तक कवर किया सपोज करो 10 मीटर्स। हमने यहां से ए से सी तक जाने में 3 + 10 मेक्स इट 13 मीटर्स कवर कर चुके हैं। फिर ये ऑब्जेक्ट सी से वापस आ गया ए पॉइंट पर, तो यानी कि 13 मीटर्स वापस आने में भी कवर कर लिए। तो डिस्टेंस तो हमारी कितनी हो गई, कहां से कहां तक में, ए से बी, बी से सी, सी से वापस ए पर आने में डिस्टेंस हो गई 3 + 10 + 13, यानी कि 13 का डबल ही हो गया सीधा सीधा। सो यानी कि 26 मीटर्स हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी 0 मीटर्स की, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब समझो, डिस्प्लेस करना, किसी चीज को अपनी जगह से हटा देना। क्या ये ऑब्जेक्ट अपने पुरानी जगह, जिस पुरानी लोकेशन पे ये था, क्या वहां से हटा है? नहीं, वापस वहीं आके रुक गया अल्टीमेटली ये। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट है सपोज इस पॉइंट पर, मान लो ये है पॉइंट पी, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलरली घूम रहा है इस तरह से, फाइन, इस डायरेक्शन में, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि क्लॉक घूमती है ऐसे, हम उल्टा जा रहे हैं एंटी क्लॉक। पी पॉइंट से ये शुरू करता है और इस तरह वापस घूम के इसी पी पॉइंट पे आके रुक जाता है। तो भले ही सपोज इसका रेडियस जो है सर्कल का वो है सपोज 7 मीटर्स, तो क्या ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कितना? इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के जितना। तो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2πr के बराबर, फाइन, यानी कि 2 × 22/7 जो आइडियल वैल्यू पाई की है इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 44 मीटर की डिस्टेंस हमने कवर की है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 मीटर्स। क्यों? क्योंकि हम अल्टीमेटली वहीं आकर रुक गए जहां से हमने शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एट टाइम्स एग्जाम्स में और टेस्ट में पूछा जाता है कि क्या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, और हाँ तो कैसे? ऐसे। Now it's time to discuss our next topic, which is speed versus velocity. तो हमने डिस्कस किया था पहले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या एक्चुअली डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, इनको अगर हम कंपेयर करें तो क्या कंपैरिजन निकल के आते हैं। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी में कंपैरिजंस की, स्पीड और वेलोसिटी किस रेफरेंस में सेम है और किस रेफरेंस में अलग अलग है। तो पहले शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। स्पीड की जब डेफिनेशन हम बात करते हैं तो स्पीड को डिफाइन करते हैं, स्पीड इज defined as the ratio of distance with respect to time। बस स्पीड और डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है पहले से इन आवर प्रीवियस क्लासेस, 9th से पहले 8th में आप ये फॉर्मूला ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी वजह से इसकी एसआई यूनिट जो आती है निकल के, वो आती है, देखो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड। इन द सेम वे डिस्टेंस की अगर स्पीड की जो डेफिनेशन है वो है रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी इसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कहा जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस।
कि डिस्टेंस के चेंज होने का रेट क्यों, क्योंकि टाइम के हिसाब से हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसी तरह से वेलोसिटी को जब डिफाइन किया जाता है तो वेलोसिटी जो है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई जैसे स्पीड है डिस्टेंस और टाइम का रेशो, ऐसे वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो, जिसमें कि अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो हमने अभी अभी पढ़ा था इस वीडियो में ही कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है और टाइम की तो ऑटोमेटिकली यूनिट सेम ही आएगी, तो जो ऐसा यूनिट होगी वो सेम होगी, विच इज मीटर पर सेकेंड। अगर इस रेफरेंस में डिफाइन करें तो जैसे स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम यहां पर डिस्कस करें, डेफिनेशंस दोनों की अलग अलग हैं, यूनिट सेम है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट समझना यह है कि यहां पर स्पीड डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रही है, जो दोनों ही स्केलर है, टाइम भी स्केलर है डिस्टेंस भी स्केलर है, तो ये अल्टीमेटली स्केलर क्वांटिटी है। जबकि यहां पर वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रही है, जिसमें टाइम तो स्केलर है बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट यहां पर है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, विच मींस दैट वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यह है कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना फर्क है कि स्पीड डिस्टेंस का रेशो है टाइम के साथ, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का रेशो टाइम के साथ। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन की बात करो, यूनिट्स दोनों की सेम है, डेफिनेशंस ऑफ कोर्स अलग अलग हैं, और स्पीड स्केलर है जबकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स ऑल यू नीड टू नो एज ऑफ नाउ। आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे, इसके आगे देयर आर मोर टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू कवर फॉर यू, सो दैट you know learning at home under this situation of lockdown becomes easier for you, क्योंकि of course the books won't really be speaking out for you guys, and I know there is like a lot of content already on YouTube, but I am just compiling up what is important for you according to me, as far as the ICSE scope of syllabus is concerned. That's all. This is me signing off as of now. I'll be back with more content. That's all. Thank you.